Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now, in the last section of this concept building of pharmacology, now we will see what is pharmacodynamic. We have seen the pharmacodynamic was actually the branch of pharmacology which is pharmacological effect, the therapeutic uses, non-therapeutic uses, and mechanism of action, etc. Now, let's see basically what we mean. First question in pharmacodynamic which we ask, that is where it acts, that is site of action. Sites may be receptors like cholinergic receptor, adrenergic, histaminergic receptor, dopaminergic, opioid receptor, etc. There may be enzyme, there may be ionic fluxes, etc. Enzyme includes cholinesterase, xanthine oxidases, cyclooxygenase enzyme, and many others. Then ionic fluxes includes sodium calcium channels, sodium potassium ATPase, and so many others also. Second point or second question which we ask, how it acts, what will be the mechanism of action. So obviously whatever we have seen previously site, first is modification in the function of those sites, of the receptor, of the enzyme, of the ionic fluxes, etc. So how they modify the biochemical and physiological cell function. There may be increase in cyclic AMP, increase in cyclic GMP, or decrease in cyclic AGMP, inhibition of cyclooxygenase, sodium potassium ATPase enzyme, and so many others. Then obviously after that, what are the effects? Usually because we are giving the drugs, so we are calling them as pharmacological effects. As we have been discussing previously, few of the effects are usable, few are not. So both usable or adverse effects may be the pharmacological effects. For example, there may be increase in force of contraction of heart, or stimulation of vomiting center, a bone marrow, all are pharmacological effects. But we want to increase the force of contraction of heart, for example, when there is decrease in the force of contraction of heart, like in certain acute cardiac failure. Stimulation of vomiting center. There's one of the pharmacological effects. So many drugs. I have been giving you examples of opioid also. So they may be used, usually not, but rarely may be used to induce vomiting in some sort of poisoning present in the stomach. But usually it remains as adverse effects or unwanted effect. Bone marrow depression. So obviously we don't have any use for this. We want to depress the bone marrow of a person. No. So that is why it is usually always a severe type of adverse effect, which may lead to produce depression of the synthesis of different types of cells, RBC, WBC, platelet, etc. So according to this discussion, pharmacological effects may be desirable or undesirable. Desirable may become usable or it may be unusable. So that is why usable becomes uses and non-usable becomes side effects, or if with toxic level, may be toxic effects. Now, the undesirable effects. Collectively, these may be any of these side effects, adverse effects, all are undesirable. We don't want to for the drug to produce such effects. But usually, obviously, I have been telling you, due to the particular structure, they will produce all these effects. Commonly, side effects are usually the unused pharmacological effects in a particular patient, while adverse effects are those effects usually we don't want to get produced. For example, just like we have seen nausea, vomiting, etc., and similarly bone marrow depression. So these are again with the therapeutic dose. Side effects and adverse effects are with the therapeutic dose and therapeutic levels, while toxic effects more than the therapeutic dose. Usually
with the toxic levels or due to toxic metabolites. As I have been giving you examples of acrolein, which was a toxic metabolite of cyclophosphamide. Similarly, toxic effects of isoniazid, hepatotoxicity, toxic effects of opioids, neurotoxicity, and so on. So the toxic effects may be pharmacological due to drugs, may be pathological due to pathological changes, and maybe some changes in the genetic level, genotoxic level. There may be some other undesirable effects also. Intolerance and tolerance. Intolerance simply means due to use of some drugs, some undefined adverse effects appears, nausea, vomiting, etc., etc., and it only related to the particular person only. It's not generalized with the drug. It's particularly with the patient. Intolerance. While the tolerance, we will see just now what we mean by tolerance, and then tachyphylaxis and idiosyncrasy and the hypersensitive reactions. So I will just tolerance. Practically, after attaining the normal required full therapeutic response or effect, after that, then there is a gradual decrease in the response of drug when used in a therapeutic schedule. It may vary from drug to drug. Once a day, twice a day, thrice a day, 6 hourly, 4 hourly, etc. And once a week, twice a week, once a month, once a year, etc. According to the therapeutic schedule of that particular drug. When the response after achieving it full, gradual decrease is there, we call it tolerance. And if we want to get the same amount or same magnitude of response, then we have to increase the dose. And if we increase the dose, again we will get the same magnitude, same amount of response. And this is common with the opioid. For example, opioids are commonly used for analgesic, as analgesic for painful state in the, for example, in the terminal stages of cancer. Because in terminal stages of cancer, usually nerves are involved. And whenever, due to any reason, nerves are involved, pain is very severe. So such pain is not tolerable by the person. So usually to get relief, we prescribe these opioids. And analgesia produced patients free from the painful state. But after continuous use of few days, अब शेड्यूल जो भी है, once a day, twice a day, thrice a day, जो जितने मिलीग्राम मॉर्फिन देते हैं, pain free is patient. But after few days or few weeks, even some patient, the response of this analgesia start decreasing. हमें कैसा पता लगेगा? The patient will start again feeling pain. डोज नहीं कम की, डोज उतनी ही है, but patient has started feeling pain. So if we increase the dose, then पहले से डबल कर दी या 1.5 गुना कर दी, जैसे भी है, according to requirement, again the patient will be free from pain, क्योंकि अब एनर्जीजा फिर उसी मैग्नीट्यूड अमाउंट का मिल गया जैसे पहले पेन फ्री था. सो दिस इज द टॉलरेंस. और भी रीजन होती है, वो हम इंशाल्लाह जब टॉलरेंस डिस्कस करेंगे वो फिर होगा कि बाज़ औक़ात वो डोज बढ़ाने से मसला नहीं होता, क्योंकि उसमें एक्चुअली देयर इज डिसेंसिटाइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन थ्रू विच द इफेक्ट वाज प्रोड्यूस्ड. अब उसमें अमूमन ड्रग हॉलीडे देते हैं, जब तक मेम्ब्रेन दोबारा रिसेंसिटाइज नहीं होता इफेक्ट नहीं मिलेगा. ठीक है, वो भी टॉलरेंस होती है, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह, स्पेशली इन केस ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन. ऑन द अदर हैंड रेजिस्टेंस, बाद लोग कंफ्यूज कर देते हैं इसको टॉलरेंस के साथ. नो, resistance is actually with antimicrobial chemotherapeutic agents like with the antimicrobial, antitubercular, antiviral, anti-cancer, antimalarial, etc. Here usually there is a loss of response. और इसमें अमूमन आप डोज बढ़ा भी दें इफेक्ट नहीं मिलता, या फिर डोज इंटरवल भी वक्ती तौर पे दे दें फर्क नहीं पड़ेगा. इसमें अमूमन once the loss of response of particular agent is produced, it remains for years and years usually. Now tachyphylaxis. Now please reproduce this word, tachyphylaxis, not touchy. Okay, tachyphylaxis.
Now, here again, there is a decrease, but here is a rapid decrease in response. अब difference क्या हुआ? Tolerance में there was gradual decrease. Tachyphylaxis में there is rapid decrease. वो कब हुआ था tolerance? When the drug was used in its routine therapeutic schedule. While this appears when there is a repeated dose after a short period of time. ठीक है? Usually examples indirectly acting sympathomimetics, hydralazine, etc. or with the nitroglycerin, etc. अब इनके साथ क्यों होता है? Indirectly means here the drug is not directly binding with the receptor or the enzyme or the anaphylaxis or other site of. Instead of that, they are producing effects by the natural ligands which are meant for those receptors or those receptors enzyme or influx, etc. Through those they are acting indirectly. Now, indirect sympathomimetic we will see later on, inshallah, ephedrine and amphetamine, etc. Here the natural ligand is norepinephrine. Now, what happens when we give these indirectly acting sympathomimetic like ephedrine and amphetamine? They will go inside the nerve ending and they will displace the norepinephrine present in its vesicles. And norepinephrine, after displacement, will go to the synaptic cleft and then will bind its adrenergic receptor on which it acts and bind, usually that is alpha and beta receptor, and will produce effects. So effect will be produced by the norepinephrine, but that norepinephrine has been released by the indirectly acting sympathomimetic like ephedrine, amphetamine. Okay, so they will act only until norepinephrine is present. Now, if we give these drugs repeatedly within a short interval, obviously they will displace the norepinephrine rapidly from the store until the whole store is depleted. अब जाहिर है कि नए बनने में तो टाइम लगेगा ना. So either we have to wait till the new stores are replenished and then only, and that may take few days. जबकि टॉलरेंस में तो चंद घंटों में ही काम हो जाता है बाकी, लेकिन कई काफ़ी दिन लग सकते हैं उसके स्टोर रिप्लेनिश होने में. तो टैक्योफ्लेक्सिस में एक तो ये मैकेनिज्म है कि रैपिड डिक्रीज ड्यू टू रिपीटेड डोजेज शॉर्ट इंटरवल, और सिमिलरली हाइड्रोलाजी. नाइट्रोग्लिसरीन की एग्जांपल हम देखेंगे, वो एक्चुअली अगेन रैपिडली मेम्ब्रेन को डिसेंसिटाइज कर देती है, इसलिए रिस्पॉन्स जल्दी कम होता है. अब यहाँ पे इसी के एग्जांपल दोबारा मैं समझाता हूँ कि नाइट्रोग्लिसरीन कैन प्रोड्यूस बोथ टॉलरेंस एंड टैक्योफिलैक्सी. टॉलरेंस पैदा होती है व्हेन वी आर यूजिंग नाइट्रोग्लिसरीन इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसडर्मल पैच, जिसकी वजह से कांस्टेंट लेवल उसके मेंटेन हो रहे होते हैं नाइट्रोग्लिसरीन के ब्लड के अंदर. सो आफ्टर 10 to 12 आवर्स रिस्पॉन्स कम होना शुरू हो जाएगा, ग्रेजुअल टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी. तो इसीलिए हम यूजुअली एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि वो ट्रांसडर्मल पैच जो है रिमूव दैट पैच आफ्टर about 10 to 12 hours to avoid the development of tolerance. While जो tachyphylaxis है इसी नाइट्रोग्लिसरीन से पैदा होती है, लेकिन कब? When we are using the nitroglycerin tablet sublingually repeatedly due to some reason. हो सकता है कि पेन बार बार हो रहा हो और पेशेंट जो है वो उसको बार बार ले रहा हो कि शायद अब ठीक हो जाए, फिर ले लो, फिर ठीक हो जाएगी, लेकिन शुरू में थोड़ा सा कम होता है, फिर ऐसा देखते हो वो पेन पहले से दोबारा सिवियर वापस आ गया, इसलिए अब वो टैक्योफिलैक्सिस डेवलप हो गई. Here increasing the dose will not increase the response, क्योंकि यहाँ पे रीजन ठीक करनी पड़ेगी, डोज बढ़ाने का यहाँ मसला ही नहीं है. So as I told you, due to rapid exposure of the drug to the tissue, it becomes desensitized and insensitive. So by giving the time to tissue to regain its sensitivity, like nitroglycerin, dalazine, ये मैंने example अभी बताई, तो इसमें फिर हम we can explain the reason of tachyphylaxis and the remedy of tachyphylaxis also. Iatrogenic effects. Now, iatro means caused by physician induced. Now, actually, these are the harmful effects of a drug which are produced when the drug is used by the physician for the treatment of some disease. Example, देके समझिए. मसलन, adrenocorticoids usually
हम इनको यूज करते हैं इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट लेने के लिए, बेशुमार कंडीशन है, रुमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है, और मसाइल हैं, पर लॉन्ग यूज इसका वजह तो आहिस्ता आहिस्ता इसके हार्मफुल इफेक्ट पैदा हो जाएंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह के। कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम विल बी द आर्टरोजेनिक इफेक्ट कि ट्रीटमेंट की वजह से ये चीज पैदा हो रही है। इडियोसिंक्रेसी, हमें पता है कि इडियो सिंपली मीन्स एबनॉर्मल, ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज एबनॉर्मल, नॉर्मल नहीं है, एक नॉर्मल इफेक्ट पैदा करी ड्रग वो नहीं, उसे हट के एज एन एबनॉर्मल, अनएक्सपेक्टेड, वी कांट प्रेडिक्ट, इट्स अनप्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स ऑफ ए ड्रग कि कब होगा कब नहीं होगा, अभी होगा कब होगा, पहली डोज के साथ आखिरी डोज के साथ दरमियान, इट कैन हैपन एट एनी टाइम, abnormal, unexpected, unpredictable response of a drug, usually due to some genetic differences in the drug metabolism या उसके responsiveness में या उसकी hyper sensitivity, अभी देखते हैं hyper sensitivity कैसे कहते हैं, ठीक है, so usually due to genetic reason, ठीक है, abnormal, मसलन प्राइमाक्विन ये एक एंटी मलेरियल खास, सल्फोनामाइड ये भी एंटीबैक्टीरियल भी हैं, और भी ड्रग्स होती हैं, लेकिन इनकी वजह से जेनेटिकली ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेट G6PD डेफिशिएंसी हो जाती है, उससे फिर हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ द वॉल ऑफ द आरबीसी। जब ये कमी हो जाती है तो उसकी आरबीसी की वॉल जो है वो फ्रेजाइल हो जाती है, इजिली गेट ब्रोकन डाउन एंड हीमोलिटिक एनीमिया का हेमोलिसिस हो जाता है, ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। फिर क्लोरोफेनिकोल ये एक एंटीबैक्टीरियल है, इससे भी एप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, हालांकि ये तो एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट होना नॉर्मल, लेकिन एबनॉर्मल इफेक्ट उसका एप्लास्टिक एनीमिया होता है। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट, दैट इज इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस आर नॉट रिवर्सिबल, रिमेंबर, वट एवर द डैमेज, जितना भी हो गया, थोड़ा हुआ, दरमियान में ज़्यादा हो गया, वट एवर द डैमेज हैज हैपेंड टू द टिश्यू, टू द साइड, दैट इज नॉट रिवर्सिबल, जब तक नई चीज नहीं बन जाती तब तक ये रिस्पॉन्स, ये डैमेज ये वहां पे मौजूद रहेगा। Now next, that is super sensitivity. Here I would like to tell you that now there will be few names or terminologies which are resembling to each other, ठीक है, तो इसको कंफ्यूज मत कीजिए, वो जैसे मैं कहा करता हूँ मिलते जुलते नामों से धोखा मत खाइए। Let's see what is super. So super sensitivity actually is the increased responsiveness of the tissue receptor to the usual dose, जो डोज दे रहे हो उसी में, बाकी बेशुमार पेशेंटों को कुछ नहीं हुआ, किसी एक में अचानक रिस्पॉन्स ज़्यादा हो गया ड्यू टू यूजुअल डोज ऑफ द ड्रग और इवन ड्यू टू एंडोजेनस सब्सटेंसेस प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मौजूद उनसे रिस्पॉन्स ज़्यादा हो गया। और कब होता है? यूजुअली ड्यू टू अप रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर। अप रेगुलेशन, अब टर्मिनोलॉजी आप आगे पढ़ेंगे सुनेंगे, बेसिकली अब यहाँ से याद रखिए, सिंपली मीन्स अप रेगुलेशन इंक्रीज नंबर ऑफ रिसेप्टर्स अवेलेबल फॉर द इफेक्ट। तो क्योंकि नंबर ऑफ रिसेप्टर्स ज़्यादा हो जाते हैं तो उसी हिसाब से फिर रिस्पॉन्स भी ज़्यादा मिलता है, ठीक। ये होता है अमूमन, फॉर एग्जाम्पल बीटा 1 रिसेप्टर व्हेन ब्लॉक्ड फॉर लॉन्गर टाइम, जैसे आपने वो पढ़ा था ना फिजियोलॉजी में, डीनर्वेशन अगर हो जाए, कट जाए नर्व, तो कुछ अरसे बाद आप देखें उनकी रिस्पॉन्स बढ़ जाती है। क्यों होती है? कि डीनर्वेशन के बाद क्योंकि आगे न्यूरोट्रांसमीटर नहीं जा रहा होता जो रिसेप्टर बाइंड करना है, तो वो रिसेप्टर विदाउट न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से वो समझते हैं कि कम हो गया, नहीं आ रहा, तो चलो नंबर ऑफ रिसेप्टर बढ़ा दो, तो इंक्रीज नंबर ऑफ रिसेप्टर हो जाते हैं, इसे कहते हैं अप रेगुलेशन। ये ब्लॉकर की वजह से भी हो सकता है कि लॉन्ग ब्लॉक, मतलब बीटा रिसेप्टर की बात लिखी हुई हमने, सो इफ वी ब्लॉक द बीटा 1 स्पेशल रिसेप्टर फॉर लॉन्गर टाइम, ठीक है, there will be up regulation of the receptor of the side where beta 1 are present. Usually it's the heart where beta 1 receptors are dominantly present. So when we are using beta blocker for longer period, then we increase beta 1 receptors of the heart. अब आप खुद सोचिए, हार्ट की मेन एक्टिविटी क्या होती है? वैसे तो पंपिंग है, बट वो डिपेंड करती है उसकी कंट्रैक्शन पर, वो डिपेंड करती है इम्पल्स पर और इम्पल्स प्रोडक्शन पर, रेट एटसेट्रा। सो इन तमाम को बीटा 1 रिसेप्टर कंट्रोल कर रहे हैं, इन तमाम पे बीटा 1 मौजूद होते हैं।
सो इंक्रीज एक्टिविटी तमाम की रेट बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ जाएगी, ठीक है, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा, तमाम चीज़ ज़्यादा हो जाएंगी, ताकि बाद का ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो इंक्रीज हार्ट एक्टिविटी की वजह से बाद का जाहिर है कि इंक्रीज एक्टिविटी डिमांड्स मोर ऑक्सीजन। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट है who is already compromised regarding this supply of oxygen, demand supply की वजह से, तो इनकी वजह से there may be precipitation of the angina attacks, तो सुपर सेंसिटिव बात का खतरनाक बन जाती है। So anyhow there will be increased number of receptor beta 1 after prolonged blockade. Similarly cholinergic receptor blocked by thiothiazine, ये हम पढ़ेंगे एंटी साइकोटिक, ठीक है, उसमें यूज करते हैं, उसकी वजह से भी बात का ये होता है, फिर हम देखें क्यों होता है, खैर नहीं हो। यूजुअली देयर इज अप रेगुलेशन, ठीक है, सुपर सेंसिटिविटी इंक्रीज ड्यू टू अप रेगुलेशन रिसेप्टर। दो चीजें याद रखनी है कि व्हाट इज सुपर सेंसिटिविटी, इंक्रीज रिस्पॉन्स ऑफ द टिश्यू, क्यों, ड्यू टू अप रेगुलेशन। हाइपर सेंसिटिविटी मैं कह रहा था, अभी मिलता जो तनाव होगा ना, वो सुपर था, ये हाइपर है। सुपर था इंक्रीज रिस्पॉन्स, हाइपर है एलर्जिक रिएक्शन, ये ध्यान में हमेशा रखना है। दीज आर द इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक, ये आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह पैथोलॉजी में। 4 टाइप्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस आर देयर, ठीक है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, फ्रॉम सिंपलेस्ट स्लाइड स्किन रैशेस टू सीवियर टाइप्स ऑफ acute anaphylactic shock which may lead to death of the person, तो कुछ भी हो सकता है, all are hypersensitive reaction। अगली टर्मिनोलॉजी ड्रग कॉम्बिनेशन, व्हेन वी कंबाइन द ड्रग इंटरेक्शन, अगर हमने पहले देखा था ड्रग इंटरेक्शन या ड्रग इंटरेक्शन when 2 or more than 2 drugs are given together they can affect the effects of each other, ये अल्फाज में बोले थे। अब हमने कंबाइन किए, मसलन एक तो एडिटिव इफेक्ट हो गया, एडिटिव मीन्स एडिशन हो गई, 1 + 1 = 2, ठीक है, सिंपल। ये क्या होता है, मसलन दो ऐसी ड्रग्स थी, दोनों सीडेट कर रही हैं, गनूदगी कम कर रही हैं, दोनों का इकट्ठा किया, गनूदगी ज़्यादा हो गई। 1 कप चाय में आपने 1 चम्मच चीनी डाली, उसकी अपनी मिठास, दूसरे कप में सिर्फ शहद डाला, उसकी अपनी मिठास, दोनों एक ही कप में मिला दी, मिठास ज़्यादा हो जाएगी। दिस इज एडिटिव इफेक्ट। सो मोर सेडेशन विद द एडिशन ऑफ सिनर्जिप्रेसिव। सेकंड इज synergistic, synergism, it is derived from Greek word sign together, organ, so work together, ये synergism। So actually they are acting the same direction. Example is combination of penicillin and aminoglycoside increase the antimicrobial spectrum। मैथमेटिकल चीज़ मैं समझाता हूँ। एडिटिव मैंने कहा था 1 + 1 = 2, साइनर्जिज्म में भी 1 + 1 > 2, ठीक है। ये बाद लोग ये भी कहते हैं 1 और 11, कुछ कह लीजिए। अकेले अकेले थे रिस्पॉन्स उनका अकेले अकेले का, जब दो कंबाइन करेंगे तो अब जो रिजल्ट आएगा वो दोनों का इकट्ठा नहीं हो सकता, कहीं ज़्यादा आएगा। पेनिसिलिन एंटी माइक्रोबियल अपने हिसाब से इफेक्ट शो करेगी, अमाइनोग्लाइकोसाइड ये भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं, इन्हें अपने हिसाब से अकेले देंगे तो अपने ये भी इफेक्ट पैदा करेंगे। जब दोनों को कंबाइन करेंगे, इनके कम्बिनेशन से जो एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट मिलेगा वो बहुत ज़्यादा माइक्रो अगेंस्ट मिल जाएगा, ठीक है। दोनों अकेले अकेले उनके अगेंस्ट नहीं थे, इकट्ठे होकर बेशुमार के अगेंस्ट इफेक्टिव हो गए। पेनिसिलिन का नाम तो आपने सुना हुआ है उधर से बायोकेमिस्ट्री से, अमाइनोग्लाइकोसाइड भी शायद सुना हो, कुछ नाम तो आपने कॉमनली सुने होंगे। इसके अमाइनोग्लाइकोसाइड पूरा ग्रुप है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, अमिकासिन, टोब्रामाइसिन, नियोमाइसिन वगैरह वगैरह, ये ऑल आर अमाइनोग्लाइकोसाइड। अच्छा, अब यहाँ पे फिर वही मैं करूँगा, मिलते जुलते नामों से धोखा मत खाइए। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के साथ ही एक और ग्लाइकोसाइड आपके जहन में आए थे, फिजियोलॉजी में पढ़े थे, यस, कार्डियोग्लाइकोसाइड, वो थे डाइजोक्सिन वगैरह, डिजिटॉक्सिन, ठीक है। लेकिन ये अमाइनोग्लाइकोसाइड है, इसलिए जब भी देखें गौर से देखें लिखा क्या है, पढ़ा क्या है, समझा क्या है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज पोटेंशिएशन, पोटेंशिएट करना। मैथमेटिकली बाद लोग समझाते हैं कि
0 + 1 इज मोर देन 1। तो पहला 0 था, 1 जब मिला तो अब रिस्पॉन्स मोर देन 1 हो गया। उसने 0 को समझ लें कि एक्टिवेट कर दिया, इफेक्ट ज़्यादा कर दिया। ये सब समझाने के लिए एग्जाम्पल्स में देखिए कि मतलब 3 कॉम्बिनेशन में मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। फर्स्ट इज लेवोडोपा विद कार्बिडोपा। लेवोडोपा we know crosses the blood-brain barrier and in the brain converts into this dopamine to increase the deficiency occurred in Parkinsonism at the level of basal ganglia. लेकिन यूजुअली ये पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म इतना ज़्यादा हो जाता है विद द एंजाइम डीकार्बोक्सिलेज कि बहुत थोड़ी क्वांटिटी बचती है फॉर द ब्रेन टू क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड टू एंटर टू ब्रेन। तो उस क्वांटिटी को ज़्यादा रख लेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन तक पहुँचे, वो तभी मुमकिन है अगर पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म को हम कम कर दें। एंड दैट इज रिड्यूस्ड बाय द कार्बिडोपा। इट इनहिबिट्स द पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम डोपा डीकार्बोक्सिलेज। सेकंड एग्जांपल इज नॉरड्रेनालिन। ये न्यूरोट्रांसमीटर नेचुरल, पेरिफेरल भी और ब्रेन वगैरह में भी। कोकेन को हम जब मिलाते हैं, कोकेन एक्ट्स एज ए न्यूरोनल अपटेक इनहिबिशन, तो चुनाचे नॉरपेनेफ्रिन वहाँ से ज़्यादा अवेलेबल वापस नहीं जाती। नॉर्मली क्या होता है कि नॉरपेनेफ्रिन वैसे कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर जब होता है रिलीज होता है तो वहाँ से रिलीज होने के बाद द मेजर पार्ट इज रीअपटेकन, इसकी भी रीअपटेक हो जाती है। तो फ्यू केसेस मसलन आगे देखे जाके कि इसमें डिप्रेशन में हमारी एक थ्योरी है कि देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ नॉरपेनेफ्रिन अलॉन्ग विद अदर न्यूरोट्रांसमीटर सीरोटोनिन एक्सेट्रा। तो उस डेफिशिएंसी को ये मेकअप करने के लिए सिनैप्स में एक तरीका ये ढूंढा हुआ है कि जो रिलीज होकर आ जाती है उसको वापस नहीं जाने देती, वो वहीं रहती है, सो दैट मोर एंड मोर रिलीज नॉरएड्रेनालिन या जो भी न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज अवेलेबल फॉर द रिसेप्टर टू बाइंड एंड टू प्रोड्यूस इफेक्ट्स। तो जैसे मैंने कहा कि मेजर रिलीज पोर्शन इज रीअपटेकन, तो उसको रोकने के लिए कोकेन हमने देखा है, कोकेन इनहिबिट्स द न्यूरोनल अपटेक। ठीक है, तो ज़्यादा अवेलेबिलिटी पोटेंशिएट करती है इस तरह। थर्ड इज सल्फामेथोक्साजोल ट्राइमेथोप्रिन। ये कॉम्बिनेशन है, जो इसका सल्फोनामाइड डेरिवेटिव में आप पढ़ेंगे, कॉमन नाम शायद पढ़ा हो, आपने सुना हो, सेप्ट्रॉन है, वेक्टिप्रॉन्ट है, वगैरह वगैरह। सो ये सिर्फ ये होता है कि एक सल्फोनामाइड एक पूरी चेन है, सीक्वेंस है सिंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड की। तो पहले स्टेप में कुछ स्टेप को सल्फामेथोक्साजोल रोकती है, अगले जो बाकी स्टेप रह जाते हैं उनको ट्राइमेथोप्रिन रोक लेती है। ये तमाम के तमाम स्टेप जो है ना वो रुक जाते हैं और इस तरह फोलिक एसिड सिंथेसिस जो है ना वो कम हो जाती है। तो इट्स अ सीक्वेंशियल ब्लॉकेज। अगला एक और कॉम्बिनेशन है एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, कि अब हमने जब कंबाइन किया तो ये अपोज कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। कैन अकर एट एनी अवर केमिकल, फिजियोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल डिस्पोजिशन लेवल। केमिकल मॉलिक्यूलर लेवल पर एसिड और अल्की, फॉर एग्जांपल इन योर स्टमक एसिड इज प्रेजेंट नेचुरली, और एसिडिटी अगर हुई है पेशेंट को या देयर इज पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर, we will give alkali, it will go inside and will bind the acid present in the stomach and will antagonize the effects and acidity कम हो जाएगी। फिजियोलॉजिकल एट द फंक्शन लेवल, ठीक है, मसलन इंसुलिन acts on its own receptor insulin and produces hypoglycemia, ठीक है, जबकि इसके मुकाबले में ग्लूकागोन है वो अपने रिसेप्टर पे एक्ट करती है लेकिन वो हाइपरग्लाइसीमिया काज करती है। So when the drugs are acting at their own receptors but producing opposite effect, हम देखेंगे this will be physiological activity. Pharmacological means at the receptors, कि रिसेप्टर पर ड्रग जाकर कोई ऐसा तब्दीली कर रही है कि उससे दूसरी ड्रग के इफेक्ट को एंटागोनाइज कर रही है, अपोज कर रही है, जाके देखेंगे जाके इंशाल्लाह। डिस्पोजिशनल एट द प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट, ये जैसे मैंने पीछे कहा था कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है, इफेक्ट मिलता है सिर्फ उस पोर्शन जो फ्री है। सो व्हेन एनी ड्रग विच इज हैविंग मोर
attraction to bind with the plasma protein, जिसको हम affinity कहते हैं, इसे attraction कहते हैं affinity, more affinity to bind with the plasma protein. तो उससे पहले अगर कोई बाइंड हुई है तो इसकी एफिनिटी उसके मुकाबले में कम है, वो अपना ज़्यादा सेल दूसरा वाली ज़्यादा सेल ले लेगी और पहले वाले को कम हिस्सा मिलेगा, इसलिए पहले वाले के ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल फ्री रहेंगे, उनको बाइंडिंग साइट नहीं मिल रही क्योंकि दूसरी की अट्रैक्शन ज़्यादा है, उससे ज़्यादा बाइंड तो बाज़ का तो उसको हटा भी देती है, हटा के खुद बाइंड करती है कि चलो हटो ये मेरी जगह है, मैं जब बाइंड कर, तो डिस्पोजिशन हो जाती है उसकी, तो जो फ्री फॉर्म पे इफेक्ट ज़्यादा मिलते हैं उससे फिर बाद में टॉक्सिक इफेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, या अपोजिट इफेक्ट भी मिलते हैं. अब फिटर डेवलपमेंट साइड इफेक्ट्स हमने अब देखा है कि भाई अब डिफरेंट स्टेजेस पे, ठीक है ना, ओवम बनता है, स्पर्म आता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है ना, 1 day 2 day, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर रिलीज होता है, ठीक है, फिर वहाँ पे अटैचमेंट होती है विद द वॉल ऑफ द यूट्रस, फिर ग्रेजुअल डेवलपमेंट होती है, ठीक है, एम्ब्रियो बनता है, फीटस बनता है, वगैरह वगैरह वगैरह. There are different stages at which drugs can show their effect, right from ovum sperm इनके आपस में मिलने से लेकर उसको ज़्यादा करना या रोकना, दोनों काम होते हैं किसी लेवल तक. 38 वीक तक मेच्योर हो रहा है, मैच्योरेशन ऑफ द बेबी ऑफ द फीटस, तब तक ये आपस में इनके एडवर्स इफेक्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है. सो डैमेज टू द फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में भी हम देखा है डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जैसे अभी ने कहा ना, ठीक है, तो उसमें इट मे बी फीटल डेथ और देयर बी मेल फॉर्मेशन. याद है कि फर्स्ट 2 to 3 मंथ्स में सारी डेवलपमेंट हो रही है, उसमें ड्रग्स अमूमन नहीं देते, इसलिए नहीं देते कि दे कैन प्रोड्यूस डैमेज एट दैट लेवल टू द बेबी. उनकी मेल फॉर्मेशन, एक बाजू नहीं आए, होंठ कटे हुए है, ये है वो है, दिल में सुराख आ गया, सो मेनी अदर थिंग्स. So, at the level of organ development, drugs may produce malformation, or there may be disturbance in the growth and maturation of the baby. Functional disturbance, ठीक है, ये यूजुअली इसके 2-3 माह के बाद जब होता है, ठीक है. So there may be severe side effects during pregnancy also. During lactation, अब डिलीवरी के बाद जब फीड करवा रहे हैं बेबी को, तो अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से कोई मदर है वो ले रही है, तो मतलब उसको ट्यूबरकुलोसिस थी, अब उसका इलाज बड़ा लंबा होता है, ठीक है, बेबी पैदा हो गया, अभी तक वो दवाइयाँ ले रही है. सो उनमें से कुछ ड्रग्स जो सीक्रेट होंगी मिल्क में, बेबी जब मिल्क सक करेगा तो साथ ही वो ड्रग को भी जो सक करेगा और ले लेगा, और दैट विल गो इनसाइड द बेबी एंड कैन प्रोड्यूस द इफेक्ट्स. तो यूजुअली ये थेराप्यूटिक इफेक्ट मदर में होते हैं, लेकिन बच्चे के लिए, बेबी के लिए अनवांटेड इफेक्ट है. तो ये इफेक्ट्स जो है, जैसे मैंने कहा, एक्सटेंट ऑफ ट्रांसफर ड्रग इनटू मिल्क, उस पर इन्फेंट डोज पे भी डिपेंड करता है. अगर बेबी को ही देना आपने, फर्स्ट करो उसने डोज दी, क्या किया, वगैरह वगैरह. सो एवरीथिंग शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल वी आर प्रिस्क्राइबिंग टू द लैक्टेटिंग मदर और टू द इन्फेंट इटसेल्फ, ठीक है. फिर ऑब्वियसली सेंसिटिविटी ऑफ द साइट ऑफ एक्शन आल्सो, बच्चों में, बड़ों में, किस में बात का सेंसिटिविटी कम होती है या बात का बहुत ज़्यादा होती है, अकॉर्डिंगली इफेक्ट कम या ज़्यादा होगा. अब एक और टर्मिनोलॉजी, पैथोलॉजी. नो डाउट पैथोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी, लेकिन क्या करती है, वी डील्स विद डोजेज ऑफ द ड्रग. पैथोलॉजी डोजेज ऑफ द ड्रग्स, जैसे मैंने पहले कहा, 1 a day, 2 a day, thrice a day, 6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, 1 हफ्ते बाद, महीने बाद, जिंदगी में एक बार, वगैरह वगैरह वगैरह. इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी डोजेज ऑफ ड्रग. अब एक और थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी, थोड़ी सी ले लें एक्सप्लेनेशन. मतलब कोई भी डोज एस्टिमेटेड दी आपने, वो कैसे दी, एस्टिमेट की, डिपेंडिंग ऑन द टारगेट लेवल, कहाँ पे है, कैसे जाना है, ठीक है ना, कितनी डोज देनी है. लोडिंग डोज, लोड करना, पहले एक दफ़ा ज़्यादा डोज दे देना ताकि एक दफ़ा कम अज़ कम पूरे लेवल भर जाएं, फिर बाद में उनको मेंटेनेंस डोज दे देंगे, मेंटेन करने के लेवल को. अगर लोडिंग डोज देंगे तो लेवल मेंटेन ही होंगे जो रिक्वायर्ड है. ये भी बात कर, ये सब में नहीं होता, हम बताएंगे आपको, पर्टिकुलर कंडीशन में होता है. सिर्फ
पर्टिकुलर डोज में, उनमें सिर्फ टारगेट लेवल अचीव करने के लिए पहले लोडिंग डोज देते हैं, फिर मेंटेनेंस डोज देते हैं, और उसके बाद हम थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद कुछ अर्से बाद फिर असेस करते हैं, रिस्पॉन्स देके पेशेंट रिस्पॉन्स ड्रग लेवल देके वो असेस दी थेरेपी कि हाँ भाई जो चाहते थे वैसे ही है, कम है, ज़्यादा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है, नहीं मिल रहा, टॉक्स इफेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अकॉर्डिंगली वी रिफाइन डोज। रिस्पॉन्स कम मिल रहा था, वी कैन इंक्रीज द डोज, एकदम ज़्यादा मिल गया, वी कैन डिक्रीज द डोज। ठीक है, जो भी डोज हमने एस्टिमेटेड एक रखी हुई होती है, एंड वी एडजस्ट द डोज अगेन टू अवॉइड द पॉसिबल साइड इफेक्ट्स। ठीक है, इसके साथ फिर हम दोबारा असेस करते हैं थेरेपी को, फिर उसमें जाते हैं। ठीक है, क्या दोबारा असेस करनी है कि नहीं करनी। Now next is therapeutic range. Range is always between two levels. Here therapeutic range is the range between therapeutic concentration. कौन सी? Lower one is the therapeutic concentration but minimum. Above is the therapeutic but the maximum. So range between minimum therapeutic concentration and maximum therapeutic concentration will be the therapeutic range. Minimum means below which there will be no effect, as in case of dose 1 हमने दी लेकिन मिनिमम से नीचे है, कोई इफेक्ट नहीं। ठीक है, और इसको देखते हुए हम डोज बढ़ाई लेकिन इफेक्ट मिला, लेकिन सिर्फ इतने अर्से जब तक मिनिमम से ऊपर है। ठीक है, रेंज क्या आ गया, लेकिन रेंज में आने के बावजूद थोड़े अर्से के लिए रहा सेकेंड डोज। देन वी फर्दर इंक्रीज द डोज, जिसे हम देखा कि जल्दी लेवल मिनिमम क्रॉस करके थर्ड रेंज में आ भी गया और ज़्यादा देर तक रहे। ठीक है, इस किस्म के इफेक्ट्स अमूमन चाहते होते हैं हम डोज ऐसे दें जिससे थर्ड रेंज में हमारे रिक्वायर्ड टाइम तक लेवल मेंटेन रहें। ठीक है, रिक्वायर्ड टाइम कौन सा होगा, अकॉर्डिंग टू डिजीज। अच्छा, अब टर्मिनोलॉजी क्या हुई, थेरेप्यूटिक रेंज इज द रेंज बिटवीन मिनिमम थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन एंड मैक्सिमम थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन। मैंने भी कहा मैक्सिमम का अंदाजा होता है मिनिमम टॉक्सिक से। जब तक मिनिमम टॉक्सिक नहीं पता होगा, हमें पता नहीं होगा कि मैक्सिमम पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। ठीक है, तो मिनिमम टॉक्सिक एंड मिनिमम थेरेप्यूटिक, इसके दरमियान में जो है एक और लफ्ज सवाल को, दैट इज थेरेप्यूटिक विंडो। मैं रिपीट करता हूं, थेरेप्यूटिक रेंज इज द रेंज बिटवीन मिनिमम थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन एंड मैक्सिमम थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन, while therapeutic window will be range between minimum therapeutic and minimum toxic, which is just above the maximum therapeutic concentration. आपस में जुड़ी हुई हैं, एक पहले आया एक स्टेप आ गया, बस इतना फर्क है। फार्माकोजेनेटिक, ये भी पढ़ेंगे, इट्स अ ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट द रिस्पांस ऑफ द ड्रग। ठीक है, कोई मेटाबॉलिज्म किसी का रैपर्ड ज़्यादा है, किसी का जो अंदर रिसेप्टर्स हैं कम से ज़्यादा हैं, किसी के मॉडिफाइड हैं वगैरह, अकॉर्डिंगली इफेक्ट्स आगे, ये हम जब इंशाल्लाह पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ, वी विल कम थ्रू दैट।